کا آغاز کریں گے۔ خبر شامل کریں گے میرپور خاص سے، جہاں پر پولیس کی کارروائی، موٹر سائیکل گینگ کے 3 افراد کو گرفتار کر کے اسلحہ اور مسروقہ موٹر سائیکل برآمد کر لی گئی ہے۔ میرپور خاص، سی آئی اے اور ٹاؤن تھانے کی مشترکہ کارروائی۔ شیرواہ میں 7 موٹر سائیکلیں اور 2 موٹر سائیکلوں کا ملبہ اور 1 مشکوک کار برآمد کر لی گئی ہے۔ پولیس نے 3 ملزمان اسد علی عرف امید علی، نور محمد اور محمد ہاشم کو گرفتار کر لیا ہے۔ ٹاؤن پولیس نے ملزمان کے خلاف 3 مقدمات درج کر لیے ہیں، جن میں سے 6 ملزمان میں سکندر خدا بخش کا بیٹا عاشق اور مولا بخش مفرور ہیں۔ ملتان میں ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے مراکز صحت اور اسپتالوں کا اچانک دورہ کیا ہے۔ اس موقع پر ڈی سی نے ادویات فراہمی اور طبی سہولیات کی انسپیکشن کی اور موقع پر ہی احکامات جاری کیے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے ادویات کا اسٹاک چیک کیا اور مختلف وارڈز کا دورہ کرنے کے بعد پرچی کاؤنٹرز کی تعداد بڑھا کر مریضوں کو ریلیف فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے شوگر، ہیپاٹائٹس سمیت تمام ویکسین کی فراہمی کے لیے خصوصی ہدایات کی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے مریضوں سے ملاقات کی اور طبی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ بہاولپور میں بنیادی تنخواہ 37,000 روپے اور بلا جواز کٹوتیوں کا خاتمہ کیا جائے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں جاوید چودھری سے، جو مظاہرین کے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی، ایک طرف حکومت جو ہے ملازمین کو ان کا حق دینے کی بات کرتی ہے، تو دوسری طرف پی ایچ اے کے جو ملازمین ہیں ان کو بنیادی جو تنخواہ ہے 37,000 وہ بھی نہیں دی جا رہی۔ اس لیے ملازمین سراپا احتجاج ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ ان کے اور کیا کیا مطالبات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق آل پاکستان پی ڈبلیو ورکر یونٹ سے ہے، میں زونل چیئرمین ہوں۔ یہ پی ایچ اے کے ملازمین کو تنخواہ جو ہے یہ صرف اور صرف 25,000 دے رہے ہیں۔ 25,000 بھی اس سے کم کر کے وہ ہر 89 ڈیز کے بعد 3,000 روپیہ فی ملازمین کا وہ بھتہ لے لیتا ہے۔ ناصر اکاؤنٹ کلرک ہے یہ۔ اس کے بعد اگر وہ چھٹی کرتا ہے تو وہ 1,000 چھٹی کا لیتا ہے۔ ہمارا مطالبہ یہی ہے حکومت وقت سے اور کمیشن صاحبہ سے کہ اس کو فی الفور جو ہے اس سے ٹرانسفر کیا جائے، سسپینڈ کیا جائے اور مزدور کو تنخواہ وزیر اعلیٰ کے حکم کے مطابق 37,000 روپے کم سے کم دی جائے۔ کہ مزدور کو تنخواہ 37,000 دی جائے اور جو کرپٹ اہلکار ہیں ان کو معطل کیا جائے۔ دوسری جانب سندھ گورنمنٹ کی جانب سے دادو کے سرکاری اسپتالوں میں لگائے گئے کروڑوں روپے مالیت کے سولر پلانٹ غیر فعال ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ محکمہ انرجی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ورلڈ بینک کے تعاون سے دادو، لاڑکانہ اور سکھر سمیت سندھ کے اضلاع میں پلانٹ لگائے گئے تھے۔ سولر پینل پر کروڑوں روپے کا خرچہ ہونے کے باوجود پلانٹ فعال نہ ہونے سے اسپتالوں میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہو سکی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے اللہ بخش سے۔ اللہ بخش، بتائیے گا۔ دیکھیں، سندھ حکومت کی جانب سے ورلڈ بینک کے تعاون سے سندھ کے مختلف اضلاع کے اسپتالوں میں انرجی ڈپارٹمنٹ کے ذریعے جو اسپتالوں میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ختم کرنے کے لیے جو سولر پینل لگائے تھے وہ فنکشنل نہ ہو سکے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ دادو، لاڑکانہ، سکھر سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں جو لگائے گئے سولر پینلز ہیں وہ فعال نہ ہو سکے ہیں۔ اس سلسلے میں میرا اسپتال انتظامیہ سے رابطہ ہوا ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ آیا جو سیپکو انتظامیہ کی جانب سے جو ہے گرین جو میٹر ایشو نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے جو ہے انرجی ڈپارٹمنٹ سے جو ہے یہ سولر سسٹم جو ہے وہ ہینڈ اوور نہیں کر سکے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سندھ حکومت نے ورلڈ بینک کے تعاون سے جو ہے یہ سولر پینلز جو لگائے تھے اربوں روپے کی مالیت سے جو ہے، لیکن یہ فعال نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ غیر فعال ہیں، جس سے جو مریض جو ہے وہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا جو سامنا کرنے پر مجبور ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سولر پینل جو لگائے گئے تھے نہ صرف اسپتالوں میں بجلی مہیا کر سکتے ہیں بلکہ یہ سیپکو انتظامیہ کو بھی جو ہے یہ بجلی مفت میں دے سکتے ہیں، جس سے محکمہ صحت کو بھی یہ فائدہ ہو سکتا تھا کہ ان کے جو بلز ہیں ان میں بھی کمی ہو سکتی تھی۔ لیکن یہ پروجیکٹ جو ہے ورلڈ بینک کے تعاون سے سندھ حکومت نے اربوں روپے مالیت سے جاری تو کیا، لیکن یہ فنکشنل نہ ہونے کی وجہ سے غیر فعال ہے۔ دادو کے شہری حلقوں نے وزیر اعلیٰ سندھ اور جو ہے بلاول بھٹو سے یہ مطالبہ کیا ہے جو محکمہ صحت کے جو یہ غیر فعال سولر انرجی کا جو پروجیکٹ ہے اس کو فعال کیا جائے تاکہ مریضوں کو جو فائدہ ہو سکے۔ جی، آپ کا بہت شکریہ۔ قصور کچہری میں پیشی پرائے خاتون سے پسٹل برآمد کی گئی ہے۔ سیکیورٹی ڈیوٹی کی وجہ سے فیملی کورٹ حادثے سے بچ گئی ہے۔ خاتون کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ احاطہ کچہری قصور میں پیشی پرائے خاتون سے پستول برآمد کی گئی ہے۔ سخرہ بی بی کا اپنے خاوند سردار محمد سے عدالت میں خلا کا کیس چل رہا تھا۔ آج سخرہ بی بی اپنے 25 سالہ بیٹے نعمان کے ساتھ فیملی کورٹ میں پیشی کے لیے آئی تھیں۔
फैमिली कोर्ट के मेन गेट पर मौजूद सिक्योरिटी ड्यूटी की चेकिंग पर सुगरा बीबी से पिस्टल बरामद की गई है। थाना बी डिवीज़न पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पिस्टल और 30 गोलियां कब्जे में ले ली हैं। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। पाकिस्तान मिनरल समिट से जनरल आसिम मुनीर इस वक्त खिताब कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान मिनरल समिट से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इस वक्त खिताब करें। उनकी जानिब से कहा गया कि इक़्तिसादी सलामती और कौमी सलामती के एक अहम जुज़ के तौर पर उभर रही है। मज़ीद उनकी जानिब से ये कहा गया कि मादनी शोबे की तरक्की के लिए तलबा को बैरून मुल्क तरबियत के लिए भेज रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर की जानिब से खिताब के दौरान मज़ीद कहा गया कि ये बात अहम है कि लागत को बेहतर बनाने के लिए रिफाइनिंग वैल्यू एडिशन में सरमायाकारी की जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अपने खिताब के दौरान मज़ीद कहा कि पाकिस्तानी अवाम के पैरों के नीचे वसी मादनी ज़खायर, हाथों में महारत भी मौजूद है। पाक फ़ौज शराकतदारों सरमायाकारों के मफादात के लिए इक़दामात यकीनी बनाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, शफाफ मादनी पॉलिसी के होते हुए मायूसी बेअमली की कोई गुंजाइश नहीं है। पाक फ़ौज शराकतदारों सरमायाकारों के मफादात के लिए इक़दामात कर रही है। मज़ीद आसिम मुनीर ने कहा कि इक़्तिसादी सलामती कौमी सलामती के एक अहम जुज़ के तौर पर उभरी है। पाक फ़ौज अपने शराकतदारों सरमायाकारों के मफादात के लिए कोशिशें कर रही है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 से अहम खिताब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हम पाकिस्तानी बैकआवाज़ शराकतदारों और सरमायाकारों को यकीन दिलाते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अपने खिताब के दौरान कहा कि इक़्तिसादी सलामती कौमी सलामती के एक अहम जुज़ के तौर पर उभर रही है। पाकिस्तान में एक अहम समिट हो रही है जिससे वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी आज खिताब किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने भी इस समिट से खिताब किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी इस समिट से अहम खिताब कर रहे हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि आलमी इदारे अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराएँ। मज़ीद उनकी जानिब से कहा गया कि वसाइल की तरक्की और सरमायाकारी के लिए आलमी इदारे शराकतदारी करें। पुख्ता यकीन है कि पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में एक अहम रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए बिल्कुल तैयार है। आसिम मुनीर जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मज़ीद कहा, बैनुल अक़वामी इदारे सरमायाकारी के मौक़े तलाश करें और वसाइल के वसी सलाहियत की तरक्की में पाकिस्तान के साथ शराकतदारी करें। पाकिस्तान को मादनी शोबे की तरक्की के लिए माहिरीन की ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि इस शोबे की तरक्की के लिए तलबा को बैरून मुल्क तरबियत के लिए भेज रहे हैं। बलूचिस्तान के 27 पाकिस्तानी तलबा ज़म्बिया और अर्जेंटीना में मिनरल्स एक्सप्लोरेशन में तरबियत हासिल कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने अपने अहम खिताब के दौरान मज़ीद कहा कि बलूचिस्तान के 27 पाकिस्तानी तलबा इस वक्त बैरून मुल्क में हैं। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अहम खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद मादनी शोबे में इनफरादी और अफरादी क़ुव्वत, महारत और इंसानी वसाइल पैदा करना है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इस वक्त फोरम से खिताब करें। उन्होंने कहा कि पख्ता यकीन है कि पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में एक अहम रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए बिल्कुल तैयार है। मज़ीद उनकी जानिब से कहा गया कि इक़्तिसादी तरक्की कौमी सलामती के अहम जुज़ के तौर पर उभरी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का अहम खिताब इस वक्त जारी है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डिप्टी डायरेक्टर न्यूज़ 5 न्यूज़ ने आमिर शेख साहब ने। बहुत शुक्रिया सर। ये बताइएगा, एक अहम समिट पाकिस्तान में इस वक्त हो रही है और पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त अब पाकिस्तान पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के जो मादनी ज़खायर हैं उस पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं। इन्वेस्टमेंट बड़ी तादाद में आ रही है। अहम खिताब इस वक्त आर्मी चीफ कर रहे हैं। क्या सर आप देख रहे हैं, क्या फोर्सी कर रहे हैं, कितना पाकिस्तान को फ़ायदा होगा? जी, पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम के तहत जो है ये 2025 की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें पूरी दुनिया से इन्वेस्टर जिस वक्त है वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो हमारे पाकिस्तान के जो खरबों डॉलर की जो हमारी मादनियात हैं उसमें सरमायाकारी में दिलचस्पी लेते हैं। पाकिस्तान में ये बड़ा ये डेवलपमेंट है, एक सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस है। इससे आर्मी चीफ का जो खिताब है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें उन्होंने ये वाज़ेह किया कि उन्हें यकीन है कि पाकिस्तान जो आलमी मादनी मईशत में रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। फिर उन्होंने बैनुल अक़वामी इदारों को भी खुशामदीद कहा और उन्होंने कहा कि वो अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराएं, सरमायाकारी के मौक़े तलाश करें और वसाइल की वसी सलाहियत की तरक्की में हमारे साथ शराकतदारी करें। तो इसके अलावा उन्होंने बाकी जो चीज़ें थी, जो जैसे मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि वो
इंजीनियर जियोलॉजिस्ट ऑपरेटरों बहुत से माहिर कारकुन हमें दरकार है पाकिस्तान को जो मदनियात की दौलत को जो बंदरियाम पर लाने के लिए। तो इसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि इस शोबे की तरक्की के लिए तलबा को भी पाकिस्तान जो है वो दारुल तरबियत के लिए भेज रहे हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान बलूचिस्तान के खासतौर पर उन्होंने जिक्र किया कि 27% तलबा ज़ाम्बिया और अर्जेंटीना में मिनरल एक्सप्लोरेशन में तरबियत हासिल कर रहे हैं। तो जिसका मकसद भी ये है कि मादरी शोबे के लिए अफरादी कुव्वत को महारत और इंसानी वसाइल पैदा करना है। जी। आर्मी चीफ का ये भी कहना था कि इक्तिसादी सलामती कौमी सलामती के एक अहम जूस के तौर पर उभरी है। पाक फौज अपने शराकतदारों सरमाकारों के मफादात और एतमाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और फाल इक़दाम को यकीनी बनाएगी। अब पाकिस्तान में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मादरी सनतों की तरक्की को भी यकीनी बनाया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान अवाम के पैरों के नीचे जो है वसीम मादरी ज़खायर, हाथों में महारत और शफाफ मादरी पॉलिसी के होते हुए मायूसी और बेअमली की कोई गुंजाइश नहीं है। आगे बढ़ें और जदोजहद करें मुल्क के लिए और अपने लिए। ये उनका जो समिट से जो कॉन्फ्रेंस है उसके खिताब है उनका। और उनका मजीद उसमें ये कहना था कि हम पाकिस्तानी बेअतबाज होकर ये शराकतदारों सरमाकारों को यकीन दिलाते हैं कि कारोबार और मादरी दौलत से इस्तेफादा करने के लिए आपकी महारत से मुस्तफीद होना हमारी इज्तिमाई कौमी ख्वाहिश है। आप पाकिस्तान पर पुरएतमाद पार्टनर के तौर पर भरोसा कर सकते हैं। उन्होंने बलूचिस्तान के जो कबायली अमायदीन है उनका भी जिक्र किया और उन्होंने ये भी कहा कि बलूच कबायली अमायदीन की ताकतों से मोतरफ हैं जिन्होंने कानूनी के कामों को फरोग देने और बलूचिस्तान की तरक्की और पेशरफ्त में अहम किरदार अदा किया। उनका ये भी ये कहना था कि मिलकर काम करने से पाकिस्तान का मादरी शोबा इज्तिमाई फायदे के लिए इलाकाई तरक्की, खुशहाली और पायदारी को फरोग देगा। ये इनका इस वक्त जो वो किताब है जो इसमें पाकिस्तान मिलर इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 जो फोरम में हो रहा है, समिट हो रहा है उसमें, जिसमें पूरी दुनिया से लोग मौजूद हैं। जी। और सर ये कितनी हौसला अफजा बात है जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो कि समिट में मौजूद हैं, इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं, वो ये देख रहे हैं कि स्टेज पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म और सूबाई वज़ीर आला भी मौजूद हैं और अस्करी क़यादत भी हुकूमत के साथ पूरी सपोर्ट के साथ मौजूद है। मुल्क में अमन व अमान की बहाली हो रही है। कितनी हौसला अफजा बात है ये फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कि पाकिस्तान एक ग्लोबली जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक मरकज़ बनता जा रहा है। कितना पाकिस्तान को इससे फ़ायदा होगा, ये अप्रोच जो पाकिस्तान की है इकोनॉमी को लेकर, कितना पाकिस्तान को फ़ायदा होगा? बिल्कुल बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की है कि इस वक्त जो फोरम हो रहा है ये बहुत ही पॉजिटिव है और एक पूरी दुनिया को एक वाज़ेह पैगाम जा रहा है कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत हो या अस्करी क़यादत हो, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के, वो अपनी एक साथ एक जगह पे खड़े हुए और वो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए वो एक जो है ना वो जदोजहद करने के लिए तैयार हैं और पूरी दुनिया को ये एतमाद और ये यकीन दिला रहे हैं कि पाकिस्तान में जो सरमायाकारी है वो महफूज होगी और उसमें पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेज के इदारे पहले भी कुर्बानियां दे रहे हैं और अभी भी मजीद जो है ना वो इसको मजीद बेहतर करेंगे और बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम करेंगे। तो ये एक बड़ा जबरदस्त पूरी दुनिया को पैगाम जा रहा है जिसमें पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत इस वक्त पूरी दुनिया के सामने बैठी है और अपने खरबों डॉलर के जो जमीन में छुपे खजाने हैं उन जमीन के वो छुपे खजानों को दुनिया के सामने लाने और उस खजाने से अपना शेयर निकालने के लिए पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए एक बेहतरीन लाएअमल और हिकमत अमली तय कर रहे हैं। तो ये फोरम और इसमें आने वाले लोग और जो सरमायाकारी है ये बहुत ही हौसला अफजा बात है इस वक्त जो हमारे पाकिस्तान की मैशत के लिए बहुत जरूरी है। जी बहुत शुक्रिया। आमिर शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, डिप्टी डायरेक्टर न्यूज़ हैं 5 न्यूज़ के। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अपना अहम खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि पुख्ता यकीन है पाकिस्तान आलमी मादनी मैशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए बिल्कुल तैयार है। बैनुल अक़वामी इदारे सरमायाकारी के मौक़े तलाश करें और वसाइल की वसी सलाहियत की तरक्की में पाकिस्तान के साथ शराकत दारी करें। मजीद उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के 27 तलबा ज़ाम्बिया और अर्जेंटीना में मिनरल एक्सप्लोरेशन में तरबियत इस वक्त हासिल कर रहे हैं। अहम खिताब कर रहे थे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर। उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान इस वक्त आलमी मादनी मैशत में रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए बिल्कुल तैयार है, जबकि उनकी जानिब से आलमी इन्वेस्टर्स को ये दावत दी गई कि आलमी इदारे अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराएं।
मज़ीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। सादकाबाद के इलाके नवाज़ाबाद में अम क्रिकेट मैच खेला गया। अम क्रिकेट मैच की फतह का ताज नवाज़ाबाद ने अपने सर कर लिया है। शाहीन की बड़ी तादाद मैच देखने पहुंच गई। मज़ीद जानते हैं सादकाबाद से बख्तोजान की रिपोर्ट में। सादिकाबाद कच्चा जहां खौफ के साए रक्स करते हैं, मगर नवाज़ाबाद में कच्चे के डाकों का खौफ खत्म करने के लिए मुनफरद क्रिकेट मैच, जिसको अमन क्रिकेट मैच का नाम दिया गया, यह क्रिकेट मैच माचका और नवाज़ाबाद की टीमों के माबैन खेला गया। नवाज़ाबाद की टीम की नुमाइंदगी रुकन पंजाब असम्बली सरदार मुमताज अली खान चांग ने की। नवाज़ाबाद क्रिकेट टीम ने शानदार खेल पेश करके जीत अपने नाम कर ली। एमपीए मुमताज अली खान चांग का कहना था, नवाज़ाबाद को कच्चा कहने वालों के लिए पैगाम है कि नवाज़ाबाद पुरअमन इलाका है, और साथ इसके कि ऐसे करप्ट लोगों का भी सत्यानाश हो जो यहाँ पे आके नवाज़ाबाद को इतना बदनाम कर दिया है। यहाँ पहले इससे भी आगे कच्चे की तरफ टूर्नामेंट होते रहे। हम गड़ी दूदू में टूर्नामेंट करने चले गए, माचका में करने जाते थे, हर जगह करने। अब क्यों नहीं होते? अब क्यों नहीं अमन अमान है? ये 2 साल से डीपीओ जब से बैठा है, ये हमारे ग्राउंड भी जो है वो बर्बाद हो चुका। मैच देखने के लिए हल्का के अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की और पुरअमन मैच को ताज़ा हवा का झोंका करार दिया। अच्छा लग रहा है। मुमताज साहब का बहुत शुक्रिया जो उन्होंने हमें अपने डेरे पे बुला के हमें मैच करवाया। यहाँ के हालात बहुत खराब हैं, इसकी वजह से हम ग्राउंड में भी नहीं खेल सकते, तो उनकी वजह से हम उनके आज उत्ताक में खेल रहे हैं और नौजवानों का हौसला अफजाई करवा रहे हैं। कच्चा में अमन के लिए किए जाने वाले इकदाम की अशद जरूरत है। एल इलाका पूरी उम्मीद है कि मुमताज अली खान चांद की कोशिश से एक दिन अमन का सूरज जरूर तुलू होगा। कैमरा टीम के साथ बख्तुजान, 5 न्यूज़, सादिकाबाद। म्यूनसिपल कमेटी बोरेवाला की मुबैना गफलत के बायस सिविल सोसाइटी की जानिब से दहली मुल्तान रोड पर लाखों रुपए की खती रकम खर्च करके बनाई गई ग्रीन बेल्ट की रौनकें मांद पड़ गई हैं। मुनासिब देखभाल न होने से कीमती पौधे ज़ाया होने लगे हैं। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद आज़म तूर अपनी रिपोर्ट में। सिविल सोसाइटी नेटवर्क की जानिब से बुरेवाला को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए लाखों रुपए की लागत से बनाई गई ग्रीन बेल्ट की रौनकें म्यूनसिपल कमेटी की मुबैना गफलत की वजह से मांद पड़ गई हैं। शहरियों का कहना है कि इस ग्रीन बेल्ट को सिविल सोसाइटी ने मुकम्मल करके इंतजामिया के हवाले कर दिया था, मगर इंतजामिया की जानिब से मुनासिब देखभाल न होने की वजह से पौधे मुरझा रहे हैं, घास सूख चुकी है, आबशारों का पत्थर गायब हो चुका है, जबकि इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर भी चोर ले उड़े हैं। की जानिब से जो है ये बुरेवाला में मेन दिल्ली मुल्तान रोड पर आज से कुछ 4 साल पहले ग्रीन बेल्ट बनाई गई थी। इसमें तकरीबन कुछ 20 लाख से ज़ायद रुपए की जो खतीर रकम जो खर्च की गई थी। इसमें कीमती तरीन पौधे लगाए गए थे, लेकिन उसको जो उसके बाद जो तामीर के बाद इसको जो मुकामी इंतजामिया के हवाले कर दिया गया था, लेकिन मुकामी इंतजामिया ने जो है इसमें कोई खातर खा इसमें कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया है। और अब इस ग्रीन बेल्ट की हालत ये है कि घास जो है बिल्कुल सूख चुका है, पौधों को पानी नहीं दिया जाता, पौधे सूख रहे हैं। आगे गर्मी का मौसम मज़ीद सख्त होगा तो उसमें जो है बिल्कुल पौधे ख़त्म हो जाएंगे। जहाँ पर शहरियों के शाम को आके बैठते थे, बच्चे आके एंजॉय करते थे, यहाँ पर एक वाटर फिल्टर लगाया गया था पानी के लिए, वो भी ख़त्म हो चुका है। जहाँ पर रोशनियों का इंतज़ाम किया गया था, वो रोशनियाँ भी गायब हो चुकी हैं। तो इंतज़ामिया की नाअहली है ये। शहरियों ने कमिश्नर मुल्तान से ग्रीन बेल्ट को फिलफौर बहाल करवाने का मुतालबा किया है। मुसाफिर बड़े परेशान है। यहाँ रात को लोग बैठते थे, जब उनको प्यास लगती थी वो कूलर से पानी पीते थे। बाकी जो चीज़ें हैं, लाइट है, वो तार ली गई हैं। मेरी जो तहसील इंतज़ामिया है, क्योंकि उस वक्त जो जब सिविल सोसाइटी नेटवर्क ने आज से 4 साल पहले इसकी तमीर का ज़ुम्मा लिया था, तो वो एक MOU साइन किया था कि सिविल सोसाइटी ऐसी शहर की खूबसूरती के लिए ऐसी चीज़ों को, ग्रीन बेल्ट को बनाएगी और TM में उसकी हिफाजत करेगी। लेकिन बदकिस्मती से 4 साल गुजरने के बाद ये जो ग्रीन बेल्ट एक खूबसूरत जो लाखों रुपए की लागत से बनाई गई थी, वो खंडर का मंजर पेश कर रही है। मेरी कमिश्नर मुल्तान से इल्तमास है कि इस पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। ग्रीन बेल्ट बुरेवाला के बासियों के लिए तोहफा थी। अगर इंतजामिया इसकी मुनासिब देखभाल करे तो शहरियों को फिर से तफरीह के मौके मुयस्सर आएंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजीम नूर, चैनल 5 बुरेवाला। और इसी के साथ ही स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए 5 न्यूज़।